Honorable Principal Ma'am, Vice Principal Sir, Coordinator Sir, teachers and all my dear friends. Today we have gathered here to celebrate a subject that is often considered the language of the universe, mathematics. December 22nd marks the birth anniversary of the legendary Indian mathematician Srinivas Ramanujan, and we commemorate this day as a National Mathematics Day. Ramanujan was an exceptional Indian mathematician renowned for his substantial contributions to various branches of mathematics, including mathematical analysis, infinite series and continued fractions. One of Ramanujan's most significant contributions is his work on approximation to pi. His famous approximation gives pi to 31 decimal places and he is still widely used today. Let me tell you the story of the great discovery of 1729, known as Hardy-Ramanujan number, named after the famous mathematician Srinivas Ramanujan and his colleague G.H. Hardy. In 1913, Ramanujan was working with Hardy at Cambridge University. One day, Hardy visited Ramanujan in the hospital where he was recovering from illness. To make conversation, Hardy mentioned that he had arrived at the hospital in a taxi with the number 1729, which he thought was rather dull number. Ramanujan immediately responded, "No, it is a very interesting number. It is the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways. Firstly, 1729 is equal to the sum of cubes of 1 and 12. And it is also equal to the sum of cubes of 9 and 10. It is a remarkable example of Ramanujan's incredible mathematics, intuition and his ability to spot patterns and connections that others might miss. Mathematics is not just about numbers and formulas. It is about creativity, critical thinking and analytical reasoning. It is about solving real-world problems and driving innovations. As a student, I encourage you to develop a love for mathematics, explore its beauty, appreciate its simplicity and marvel at its complexity. As you go deeper into the world of mathematics, you will discover its power to transform and its ability to inspire. Thank you and have a nice day.
कर तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुबह से दोपहर तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर उसके बाद भी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। काश ऐसा स्कूल होता जहाँ पढ़ाई होती ही नहीं। वाह 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 वाह, सब्जेक्ट्स तो होते पर मैथ्स न होती। वाह 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 वाह, यह मैथ्स का रोना तो ऐसा रोना है जिसमें हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज रोते ही रह गए। पर यह मैथ्स है कि तस्वीर मसना हुई। अम्मी जान कहती थी नहीं करोगे पढ़ाई तो बन जाओगे हलवाई। अच्छा बेटा, मैथ्स टीचर है हम और आज है आपका एग्जाम, और जिसके नंबर आए कम एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे हम। अरे मैम ने तो मेरे पापा को ही बुला लिया। अरे क्यों बेटा, फिर से फेल हो गए? अरे चने बेचोगे चने? हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था, हम सब तो यही करते थे। अगर फिर से फेल हुए तो घर से निकाल दिए जाओगे। आया समझने? अरे तुम कौन हो? मैं मैथ्स हूँ। तुम क्यों दुखी हो? मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी समस्याओं को हल करूंगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम्हें समझाऊंगी। जोड़ घटाव गुणा और भाग मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं गणित हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मुझे अपना दोस्त बना लो। नहीं नहीं, हमें मैथ्स से दोस्ती नहीं करनी। एक हमको मैथ्स ने मारा, एक तुमको मैथ्स ने मारा, हम सबको मैथ्स ने मारा। चलो मैथ्स को मारते हैं। अरे मैथ्स क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, हर कोई हमसे करता। कोई नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं, मैथ्स ऐसा नहीं है। देखो तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं, इनसे मिलो। तुम सब कौन हो और मैथ्स के बिना कैसे अधूरे हो? मैं विज्ञान हूँ। कितना पानी कितनी हड्डियाँ, कितना पानी कितनी हड्डियाँ, दिल धड़कता कितनी बार, बिन अंकों के कुछ ना होता, बिन अंकों के कुछ ना होता, तुम्हें नमन है बारंबार, तुम्हें नमन है बारंबार। मैं हिंदी हूँ। हिंदी की तो बिंदी गोल, हिंदी की तो बिंदी गोल, 11 स्वर और 33 व्यंजन इसको बनाते हैं अनमोल। मैं अंग्रेजी हूँ। ABCD सिखलाने को रेखाएं हैं आधार, ABCD सिखलाने को रेखाएं हैं आधार। स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ना होती अगर, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ना होती अगर, इंग्लिश बन जाती बंजार। मैं भूगोल हूँ। सूरज कितना दूर धरा से और चंदा है कितना पास, सूरज कितना दूर धरा से और चंदा है कितना पास, जो ये हमको ना बतलाते तो हो जाते हम उदास। मैं इतिहास हूँ। तुम ना होते तो मेरी तिथियां बताता कौन, तुम ना होते तो मेरी तिथियां बताता कौन। कब पहला विश्व युद्ध हुआ, कब पहला विश्व युद्ध हुआ, कब भारत आजाद हुआ, कब भारत आजाद हुआ, ये सबको बतलाता कौन, ये सबको बतलाता कौन। अब मैं इन सबको मैथ्स की इम्पोर्टेंस बताऊंगी। पर सुनो भाइयों, जो काम इनके दादा परदादा ना कर पाए वो काम इन बच्चों ने कर दिखाया है। इन्हें तो मैथ्स को मारने में भारत रत्न मिलना चाहिए। पर ये क्या, ये बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं। अरे उठो, जल्दी उठो। अरे दीदी, टाइम क्या हुआ है? टाइम तो खुद ही देख लो। ये नंबर कहाँ गए? मैथ्स के साथ फरार हो गए। चलो अच्छा है, बला टली बला टली बला टली। अरे ये क्या हो रहा है? कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है। स्कूल आने का तो कोई समय ही नहीं है। अब तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड है। मैंने तुम सबको सूरज बनाने के लिए कहा था। अब सब अपने अपने सूरज दिखाओ। अरे ये क्या है? अब मैथ्स के बिना तो यही होगा ना। मैथ्स नहीं तो ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री नहीं तो शेप्स नहीं, शेप्स नहीं तो एंगल्स नहीं, और एंगल्स नहीं तो मैथ्स नहीं, और मैथ्स नहीं तो आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं। चलो अब सब अपना अपना लंच कर लो।
क्या, मम्मी ने आज कितनी सारी रोटियां दे दी है? लगता है पूरे मोहल्ले की रोटियां दे दी है। तो तुम ही बताओ कितनी रोटियां देनी चाहिए थी? मैथ्स के बिना गिनती नॉट पॉसिबल। तो शुरू हो जाओ और खाते जाओ, लेकिन सब जल्दी करना, पीटी सर बस आते ही होंगे। हम हैं पीटी सर। अटेंशन, सैनिटीज, अटेंशन, सैनिटीज, अटेंशन। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। जंप, 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 रन। खाना खाने के बाद इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब मैथ्स के बिना तो यही होगा। अरे कितने दिन हो गए, कोई छुट्टी नहीं आई। चलो आज जाकर कैलेंडर देखते हैं, विंटर ब्रेक्स आने वाले होंगे। लगता है तुमने कैलेंडर का हाल नहीं देखा है। फिक्र मत करो, मैं दिखा देती हूँ। अरे ये कैलेंडर को क्या हो गया है? जनवरी के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अक्टूबर, ना कोई डेट ना कोई नंबर। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथ्स। गुम है, गुम है, गुम है। बंद करो ये गाना शाना। तुम्हारा हिंदी का टेस्ट कब है? कल है, अभी मुझे सोने दो। अरे बच्चों, तुम्हें क्या हुआ है? मुरझाए हुए से चेहरे और उदास मन कुछ ठीक नहीं लगते हो। आज तुम्हारा हिंदी का एग्जाम है, सब पढ़कर तो आए हो ना? यस मैम। तो ये लो क्वेश्चन पेपर। अरे मैम, इतने सारे क्वेश्चंस। मैथ्स के बिना तो ऐसा ही होगा। ओह नो मैम। अरे मैम, पता नहीं अर्पित ने कौन सी दवाई खा ली है। ना कोई एक्सपायरी डेट है, ना कोई बैच नंबर। तो फिर एम्बुलेंस को कॉल करो। तो मैं कैसे करूँ एम्बुलेंस को कॉल? फोन में तो नंबर ही नहीं है। चिट्ठियां है पर पता नहीं, दवाई है पर एक्सपायरी डेट नहीं, देश का बजट नहीं है, मानो कि खाने में नमक नहीं है। चला मुरारी हीरो बनने, पर मैथ्स के बिना कोई हीरो नहीं है। क्यों, हो गया तुम्हारा शौक पूरा? जी लिए मैथ्स के बिना? लेकिन कितने दिन? चलो मैं बताती हूँ, केवल 2 ही दिन। सच बात तो ये है, हमने मैथ्स को एक टफ सब्जेक्ट घोषित कर रखा है, पर यह सच नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो सभी सब्जेक्ट्स का सुपर हीरो है। जब से बोलना सीखा है, मैथ्स से सीखा है। मैथ्स किसी के डराने से डरता नहीं और किसी के भगाने से भागता नहीं। East and West, Maths is the best. 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 क्यों, पता चल गया मैथ्स की इम्पोर्टेंस का? मैथ्स के बिना है जीवन अधूरा, मैथ्स के बिना है जीवन अधूरा। इसको पढ़कर करना है हमें पूरा, इसको पढ़कर करना है हमें पूरा। सुना है तेरे जाने वाले, हम है वो है और जग सारा, 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 हम है वो है और जग सारा। We are celebrating National Mathematics Day. So, we, the Department of Mathematics, are going to perform for you. So, please be attentive and enjoy our act. सोनाली मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। बहुत भूख लगी है मैम, चलो कुछ खाते हैं। हाँ सर, चलो कुछ खाते हैं। चलो ठीक है मैम, आओ। क्या लेके आए हो आप? मैं एप्पल्स लेके आई हूँ। ठीक है मैम, मैं ऑरेंजेस लेके आया हूँ। अरे सर, आप तो बहुत सारे ऑरेंज लेके आए हो। जी मैम, अभी मार्केट से आते हुए हाफ केजी लेके आया हूँ। अरे सर, फिर तो मेरे एप्पल ज्यादा हैं। मैं 500 ग्राम लेके आई हूँ। नहीं मैम, मेरे ज़्यादा है। नहीं नहीं सर, मेरे ज्यादा हैं। वो कैसे? चलो आप बच्चों से पूछते हैं। आप पूछते चलो बच्चों से। केजी ज्यादा होता है कि ग्राम ज्यादा होता है? देखा सर? देखा? मुझे लगता है आपकी यूनिट्स थोड़ी कमजोर है। चलिए बच्चों से पूछते हैं, वही आपको क्लियर कर देंगे। हाँ जी बच्चों, आप बताइए 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं ना। और हाफ kg, हाफ जब हम करेंगे तो कितने होंगे? 500 ग्राम। इट मीन्स कि सोनाली और आयुष सर दोनों के पास इक्वल क्वांटिटी है, और दोनों बेटा में यूनिट्स की प्रॉब्लम की वजह से
दोनों जो है आपस में झगड़ा कर रहे थे कि मेरे पास ज्यादा है और मेरे पास ज्यादा है। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आपको मालूम है, आपने बताया अगर मैं बोलूँ 1.5 किलो इन्होंने एप्पल परचेज किए, देन हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर? यस, 1000। गुड गुड, वेरी गुड। मुझे ना गिफ्ट के लिए स्वेटर देखना था। देखिए मैडम। अच्छा, ये स्वेटर है, पर इसका कलर तो मुझे पसंद नहीं है। स्वेटर का डिजाइन पैटर्न तो ठीक है, लेकिन इसका कलर मुझे पसंद नहीं है, बहुत लाइट है। और कोई दिखा दीजिए आप। नहीं मैम, इसमें यही कलर है, वो तो सब ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड है। अच्छा, ये ब्रांडेड है। चलिए गिफ्ट के लिए लेना है तो ब्रांडेड अच्छा रहेगा। इसका कॉस्ट 2000 है। अच्छा, इसका कॉस्ट 2000 है, तो 2000 तो ज्यादा है, कुछ आप देख लीजिए, कुछ अगर कुछ कम हो सकता हो तो बताइए। यस मैम, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट मिलेगा? यस मैम। पर फिर भी देख लीजिए और क्या हो सकता है, और ज्यादा थोड़ा सा और कुछ अगर कुछ पॉसिबिलिटी है। ब्रांड है ना मैम, तो इस पर डिस्काउंट भी कभी आता है, तो इसलिए 10%। नहीं, ब्रांड तो है, पर थोड़ा देख लीजिए जो भी पॉसिबिलिटी हो उसमें, तो ये मैं ले लूंगी फिर आपसे। इस पर लास्ट मैम आपको 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, 20% दे देंगे आप? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर आप मुझे ये पैक कर दीजिए। ठीक है। अच्छा ग्राहक का बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। चलो सस्ते में ही मिल गया, ठीक है चलो। तो बच्चों, ये वाला एक्ट देख के आप सबको अपनी मम्मियों की याद आई या नहीं? ऐसे करती है सबकी मम्मियाँ? ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे विकास सर और सुनीता मैम ने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, और इसके अलावा? से इट लाउड। कि कैसे सुनीता मैम ने 2000 रुपीज का स्वेटर कितने में खरीदा? 1600 में। तो कितने का डिस्काउंट मिला सुनीता मैम को? 400। तो फिर विकास सर को तो दुखी होना चाहिए, उनका तो 400 का लॉस हुआ है। यस और नो? से इट लाउड। तो फिर विकास सर ने लास्ट में ऐसा क्यों कहा कि कस्टमर अच्छा था, अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया? एनीवन? जो इसका आंसर स्टेज पे आके देगा उसको वी विल गिव टॉफी। कम। सर ने प्रॉफिट इसलिए बोला क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम था। वेरी गुड। वेरी गुड। तो यहाँ पे विकास सर ने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो स्वेटर की थी वो हमको बताई ही नहीं। उन्होंने क्या बताया हमको? 2000 रुपीज। और वो 2000 रुपीज क्या था बच्चों? उसका मार्क प्राइस क्या था? तो इससे हमने क्या सीखा? जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। किस पे मिलता है? और जो शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है? और डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे आप? कैसे डिस्काउंट निकलता है बच्चों? यस यस, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। जो विकास सर ने 2000 कॉस्ट बताई वो मार्क प्राइस था। सुनीता मैम ने 1600 में लिया, वो सेलिंग प्राइस था। तो डिस्काउंट कैसे पता चला आपको? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके। तो यहाँ से हमने सीखा जो डिस्काउंट है कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड, थैंक यू। And don't raise your toes, okay? तो आपकी हाइट है 159 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, मेरी हाइट इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? मेरी हाइट तो 2 इंचेस है। आपको क्या लगता है कि मुझे मेजर करना नहीं आता? चलो एक बच्चे की ना आपके सामने मेजर करके दिखाते हैं हम। अभी बच्चे इधर आना जरा, आपकी हाइट मेजर करते हैं, मैम को दिखाते हैं। इस बच्चे की हाइट देखिए 132 सेंटीमीटर।
मैं कुछ नहीं जानती। ऐसे तो इस पोल की हाइट अप्रोक्स 15 फीट होगी, तो क्या ये बच्चे इस पोल से भी बड़े हो गए? क्यों बच्चों? 125 15 से ग्रेटर होता है ना? ग्रेटर होता है ना? यस। पता नहीं नवीना मैम, आपने मेजरमेंट कैसे किया है? इतने बच्चों की फिजिक्स के प्रैक्टिकल में एरर्स नहीं आती जितनी आपके मेजरमेंट में आती है। पता नहीं, दोबारा से करके देखिए। रुको मैम रुको, आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चों, क्या जो मैम ने अभी मेजरमेंट की थी वो सही थी? मैम बता रही हैं 5 फीट 2 इंच है उनकी हाइट, और नबीरा मैम की हाइट जो है 5 फुट 2 इंच है, लेकिन एकता आर्या मैम बोल रही हैं कि उनकी हाइट उन्होंने मेजर किया है 59 सेंटीमीटर। तो क्या ये सेम है? बताइए लाउडली। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैम ने फुट में और सेंटीमीटर में हाइट्स को नापा, तो दोनों की यूनिट अलग अलग हैं। तो हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हम फिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को। तो क्या आप लोग जानते हैं कि एक फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कोई भी 9, 10, 11, 12? चलिए मैं बताता हूँ। एक फिट में 30.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि मैम की हाइट 159 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिट में। हम लोग क्या करेंगे कि 159 को डिवाइड करेंगे 30.5 से, तो मैम की हाइट आएगी 5 फीट 2 इंच 1.5 सेंटीमीटर। समझ आया आप लोगों को? तो ये बताइए 2 फीट में कितने सेंटीमीटर होंगे? फोर फीट में 122, 5 फीट में 152.5, और अब हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं 6.5 सेंटीमीटर। उसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप बताएंगे कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? गुड, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप 6.5 को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार हमारे पास 6.5 में 2 इंच और 1.5 सेंटीमीटर होंगे। थैंक यू। हाँ ठीक है अम्मी, चलो चलते हैं। भैया 2 लीटर दूध देना। लीटर क्या होता है? माइक ऑन। ये लीटर क्या होता है? हमारे यहाँ तो दूध किलो में मिलता है मैडम। पर हम तो लीटर में ही खरीदते हैं। नहीं, दूध तो मिलेगा लीटर में, किलो में। हम तो लीटर में ही खरीदते हैं। नहीं। है ना अम्मी? दीदी लगता है ये ऐसे ही लोगों को पागल बनाते हैं। कोई पागल वागल नहीं बनाया जा रहा है। दूध लेना है तो किलो में लो, वरना तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। हम तो लीटर में ही लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। मैम आप ही बताओ क्या हुआ? ये मना कर रहे हैं कि हम दूध लीटर में नहीं देंगे, किलो में ही देंगे। हम तो आज तक किलो में ही बेचते आए हैं। चलो आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। अभी बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने दूध वाले भैया से कहते हैं भैया 1 किलो दूध दे दो? रेज योर हैंड। या दुकान में दूध लेने जाते हैं तो दुकान में भी ये कहते हैं भैया 1 किलो दूध दे दो? हाथ ऊपर करेंगे, रेज योर हैंड। ठीक है, तो आज मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। तो जब भी बच्चों हम फ्लूइड वाली चीजें लेते हैं, ठीक है, फ्लूइड में हमारे लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं, तो जब भी हम फ्लूइड वाली चीजें लेते हैं उनका हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? उनका वॉल्यूम। क्या करते हैं? वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम की मेजरिंग यूनिट होती है वो हमारी लीटर और मिलीलीटर होती है। क्या होती है?
और जब भी हम कोई सॉलिड चीज लेते हैं, जैसे आप नमक लेते होंगे शॉप पे जाके, या चीनी लेते होंगे, दाल लेते होंगे, तो वहां पे उसका वेट मेजर किया जाता है। देखा होगा ना आपने, वेइंग मशीन में बार्स रखे होते हैं, तो वहां पे हम उसका क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। तो जो वेट की मेजरिंग यूनिट होती है बच्चों, वो हमारी ग्राम और किलोग्राम होती है। क्या होती है? तो हमें दूध किस में लेना चाहिए? लीटर में। अब कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि मैम हमारे दूध वाले भैया तो हमको क्या कहते हैं, दूध तराजू पे या किसी चीज पे रख के वेट करके भी देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? से लाउड, नहीं देते? कैसे देते हैं फिर दूध? किस में देते हैं? 1 लीटर के कैन में देते हैं। ठीक है, आप देखो बच्चों, आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको कोई वेट करके देता है और कोई कैन में देता है, तो आपको कौन सा दूध लेना चाहिए? अगर हम बात करें 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, ये तो सबको पता होगा, कितने होते हैं? और ऐसे ही 1 लीटर में हमारे 1030 ग्राम्स होते हैं। कितने होते हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो कौन सा लेने में आपको फायदा है, 1 लीटर कि 1 केजी? गुड। तो अब से आप दूध किस में लोगे? और दूध वाले भैया को क्या बोलोगे? 1 लीटर। थैंक यू। So, children, today, as you must have seen, we are having a special assembly on the occasion of Mathematics Day, National Mathematics Day. We are celebrating the birth anniversary of Srinivas Ramanujan. So he was a great mathematician, as you have been told. So I will not take much of your time. As we see the results also, and we take the feedback from the students, mathematics is a fearful subject. किस किस को मैथ से डर लगता है? किस किस को? बहुत कम हाथ उठे हैं। ये परिवर्तन क्या आज के सेलिब्रेशन के बाद हुआ है या पहले से ही? तो हमारा ही है, मैथ्स हमारे जीवन में हर जगह है। बिना मैथ्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यही नुक्कड़ नाटिका में बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया और दिखाया आप लोगों को कि मैथ्स के बिना जीवन अधूरा है। हम जी नहीं पाएंगे, समय से कुछ भी नहीं हो पाएगा, हर चीज अव्यवस्थित हो जाएगी। तो व्यवस्थित जीवन, अगर डिसिप्लिन लाइफ हमने जीनी है तो मैथ्स को हमें स्वीकारना होगा, आपके अपने अंदर उसको धारना होगा। और मैथ्स से हम जितना डरेंगे, जितना दूर भागेंगे, उतना वो हमें और डराएगा। तो हमें मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स से प्यार करना है और अपना जीवन अच्छे से व्यवस्थित रूप में उसको जीना है और उसे एंजॉय करना है, क्योंकि मैथ्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। So I would like to congratulate the mathematics department and all the students who participated. They prepared this program in a very short time. So congratulations to them. और इस तरह से programs और आगे होते रहने चाहिए. Every subject, every day should be celebrated. So thank you. Have a nice day.